Hi guys, welcome back to my channel. These were a bestseller in my home bakery and today I will show you exactly how to make them. Crispy, loaded with coconut and perfect to go with your tea. तो सबसे पहले हम लेंगे सॉफ्ट एंड सॉल्टेड बटर। इसको मैंने 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने किचन काउंटर पे रख दिया था। इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर। इसके लिए ग्रैनुलेटेड शुगर को एक मिक्सर जार में तब तक ग्राइंड करना है जब तक बिल्कुल फाइन पाउडर ना मिल जाए। बटर और शुगर के साथ हम डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट और विस्क करेंगे टू गेट अ वेरी लाइट एंड फ्लफी मिक्सचर। क्योंकि ये रेसिपी एगलेस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिफ्ट इन द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो एक छन्नी में ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड कॉर्नफ्लावर डालकर सिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें हम बहुत सारा डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल बुरादा ऐड करेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कार्डमम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। Make sure not to knead the dough a lot, we just need to bring it together. Now refrigerate this for at least an hour. 1 घंटे बाद डो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, which will help us to shape the cookies well. Now take some dough, roll it out between your hands and flatten it just like this. Desiccated coconut से कोट कर लेंगे and place it on a baking tray lined with silicone mat. अब इसको प्री हीटेड 160 डिग्रीज पर 20 to 22 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे जब तक कि कुकीज़ गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। इस स्टेज पर कुकीज़ थोड़ी सॉफ्ट होंगी लेकिन ठंडी होने के बाद वो क्रिस्प हो जाएंगी। नाउ स्टोर देम इन एनी एयर टाइट कंटेनर एंड एंजॉय। Today we are going to make chocolate chip cookies which are eggless, made with whole wheat flour and perfectly sweet. Also, I am going to share all the tips and tricks to get the perfect soft from center and firm from edges chocolate chip cookies. तो चलिए शुरू करते हैं। To bring the best flavor out, I prefer making brown butter. तो एक पैन में ऐड करेंगे 50 ग्राम salted butter and heat करेंगे on medium flame, stirring continuously. जब आपको इस तरीके से बबल्स दिखने लगे और कलर स्लाइटली ब्राउन होता हुआ दिखे तो पैन को इमीडिएटली हीट से हटा लेंगे और ट्रांसफर करेंगे एक बड़े बोल में। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप। इस ब्राउन बटर को हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद ही शुगर्स ऐड करेंगे, नहीं तो शुगर्स मेल्ट हो जाएंगी और बटर के साथ बहुत अच्छे से एरेट नहीं हो पाएंगी। आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स विस्क करेंगे ब्राउन शुगर, caster sugar and vanilla extract. क्योंकि हम एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर 1 एग को सब्स्टिट्यूट करेंगे 30 ग्राम्स ऑफ योगर्ट से। सब कुछ अच्छे से कंबाइन करेंगे और सिफ्ट करेंगे होल व्हीट फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड कॉर्नफ्लावर। एक स्पैचुला की हेल्प से bring everything together. And now it's time to add chunks of good quality dark chocolate. Now here are 2 tips about chocolate. Number 1, use the best quality dark chocolate bar and chop into chunks instead of using chocolate chips. Because chunks will melt beautifully in the cookie and will give you that perfect chocolatey mouth feel. Number 2, use chocolate which has cocoa butter instead of hydrogenated fats because real chocolate makes a difference. Add the chunks in the dough. Do not overmix at this stage, otherwise chocolate could melt and dough will become brown. Now divide in equal portions. Place some more chocolate chunks on top of the cookies and refrigerate for 20 minutes. Meanwhile, preheat the oven at 180 degrees Celsius and bake the cookies for 11 to 12 minutes. If you bake for longer, cookies will turn crispy, which you may not be looking for in chocolate chip cookies. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ड्रॉप योर कुकी ट्रे फ्रॉम अ हाइट right after you take them out of the oven so that you get those cracks.
And with that, your chocolate chip cookies are ready for that perfect chewiness from center and firmness from edges. सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ घी। ये घी ना तो पूरा मेल्टेड होना चाहिए और ना ही हार्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी समर्स है, मैंने घी को 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप देसी खांड, ये अनरिफाइंड शुगर होती है एंड इट्स अ स्लाइटली बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर। घी और देसी खांड को बीट करेंगे यूजिंग अ विस्क अंटिल इट बिकम्स लाइट एंड फ्लफी। इस स्टेज पर मेक श्योर टू इंकॉर्पोरेट एज मच एयर एज पॉसिबल, बिकॉज उसी से नान खटाई लाइट और मेल्ट इन माउथ बनेगी। अब शिफ्ट करेंगे 1/2 कप होल व्हीट फ्लावर, 1/4 कप बेसन, 1.5 टेबलस्पून सूजी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। अगर आपको लगता है कि डो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है और नान खटाई शेप नहीं हो पाएंगी, तो आप इसे फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं। नाउ टेक सम डो एंड रोल इट आउट बिटवीन योर palms एंड फ्लैटन इट लिटिल बिट। प्लेस देम ऑन अ बेकिंग ट्रे lined with silicone mat. I prefer silicone mat because nothing sticks to it and it's reusable. And if you are into baking, then I highly recommend to invest in this. Score it or make a cross using a knife, just like this, and stick chopped almonds or pistachios. अब हम इन्हें बेक करेंगे प्री हीटेड 160 डिग्री ओवन में for 15 to 20 minutes or until the edges of naan khatai become slightly brown. मिनट्स हो गए हैं और हमारी नान खटाई परफेक्टली बेक हो गई है। इसे अब हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और क्रिस्प हो जाएंगी। इन्हें आप स्टोर करें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में एंड एंजॉय एज इट इज और विथ योर इवनिंग टी। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए एंड इफ यू डू शेयर पिक्चर्स विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टैग बोल्ड बेकिंग नेशन। आई वुड लव टू सी योर क्रिएशंस। I'll see you next time. Till then, bake bold and live sweet.